Hi Tripti, how are you? I am wonderful. Thank you so much, Shifali. How are you? I'm good, yeah. I was so looking forward to catching up, with you over this conversation. The best is, Tripti, whenever I think of you, I see you dressed up all beautifully, Indian attire, the way you carry yourself, the way you speak. And, it's always intrigued me. The word that comes to my mind with regard to you is roots. वो कहते हैं ना आप कहाँ के भी हो वो पता लग जाता है दूर दूर से they say it's very important for everybody to know their roots from where they are coming. It's really important because you can spread your wings anywhere in the world, but roots is important because they tell you where you belong, where you come from, isn't Right. it? Absolutely, Shifali. And as my parents or grandparents used to say, um, कहीं भी चले जाओ दुनिया में, never forget where you come from and where you belong, because roots are your belonging, and you have to stay connected to your roots. Otherwise, you are like newspaper, just one day at a time. So you need to know where you come from. So roots are very important for me, and especially me coming from a family or the background I come from. Roots plays a very very important role, and I've been teaching the same to my kids that no matter you're studying in Gurgaon, going best of schools, but you should know आप हो कहाँ से, आपका गांव कौन सा है, आपके रिश्तेदार कौन से हैं, and that's very important for me. And we have been brought up like that in our family, that you should know हो कहाँ से आप. And that's very important actually. Roots लोग गलत समझते हैं, खाली ये नहीं होता कि कहाँ आप पैदा हुए. जी. It is a lot of culture, lot of Yeah. tradition that Right. comes with our roots, है ना? जी. एब्सोल्युटली, आई मीन काफी बार जब हम बात कर रहे होते हैं किन्हीं से, सो अर्लियर इन किड्स यूज्ड टू से कि वी आर फ्रॉम गुड़गांव, सो आई यूज्ड टू करेक्ट देम, यू आर नॉट फ्रॉम गुड़गांव, you are studying in Gurgaon, you are from Rajasthan, and then you are from a village, and that's the village name you have. So you always have to remember that that's your root, you come from. You should know your history, you should know your background, and without roots, I think we all are incomplete. एंड Right. मुझे उनका डांस बहुत पसंद है. मुझे जी. जब मौका मिला तो मैं वहाँ पे खूब नाची भी हूँ. बहुत एंजॉय करके बड़ा कोशिश किया मैंने मैं उनकी तरह नाचूं because I'm very fond of dancing and traditional folk dance. If really I had a beautiful voice, मुझे लगता है और कुछ नहीं मैं जरूर राजस्थानी folk तो जरूर गाती. एक्चुअली यहाँ से जैसे लोग जब राजस्थान जाते हैं, एंड वी बीन डिस्कसिंग फ्यू फ्रेंड्स फ्यू डेज बैक, सो वो अपनी आइटनरी इस तरह से बनाते हैं कि वो फोर्ट्स, पैलेसेस या मॉन्यूमेंट्स देखने में ही रह जाते हैं, Right. वो आइटनरी वैसे नहीं बनाते हैं, या उनको कोई ऐसे होटल्स वाले ऐसे हेल्प नहीं करते हैं कि वो एग्जैक्ट राजस्थान है क्या वो देख सके, कि वहाँ के लोग रहते कैसे हैं, या हद से हद में डांस में वो देखते हैं, कालबेलिया डांस देख लेते हैं, या भवई का कहीं पे अगर मौका मिल गया तो फोक सिंगर्स में सिर्फ लंगा पार्टी तक ही सीमित रहता है. बट देर इज more than what they see on these अच्छा. hotels या on their itinerary. वो मिसिंग है, मतलब आई रियली वांट के ऐसी चीजें हो, एंड आई थिंक many of my friends they are doing a lot on that, कि वो ऑथेंटिक जो राजस्थान है विच इज अवे फ्रॉम दीज फाइव स्टार होटल्स या हवेलियाँ या फोर्ट्स, इनके अलावा जो ऑथेंटिक चीज अगर वो देख सकें तो उनको वो ना उसका राजस्थान का जस्ट मिलेगा, बिकॉज राजस्थान इज जस्ट जस्ट फोर्ट्स तक नहीं है, बहुत कुछ है वहाँ देखने के लिए. आप विलेजेस में जाओ, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, और एकदम सिंपलेस्ट थिंग पॉसिबल, बट वो उसका जो कलर, जैसे आपने बोला कि कितना कलरफुल है, सो वो कलरफुल देखने के लिए दे रियली नीड टू गेट इनटू द लेन्स ऑफ सिटीज, जो पुरानी हवेलियाँ या जो रास्ते हवेलियों की तरफ जाते हैं, वहाँ के जो सिंप्लिसिटी है, अगर वो देखें तो उनको शायद ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि राजस्थान है क्या.
दैट्स ट्रू। आई थिंक मुझे लगता है ये खूबसूरती है माइन्यूट चीजों में होती है। जैसे वो कहते जी, हैं, जैसे लोगों का रहन सहन, उनका लाइक जिस तरह से वो अपना दिनचर्या चलाते राइट, हैं, how they work, and I think they have that rhythm and music in their bodies. It's not एब्सोल्युटली। something that is really taught to them. They just have it in them. I remember yesterday I was talking to someone and we were discussing about my grandmother. And सुबह वो जैसे उठते थे, she used to start her day with different kind of bhajans. या कोई Wow. अगर कोई गेस्ट आया हुआ होता था, सपोज बेटी के ससुराल से कोई या बेटे के ससुराल के कोई या इन जनरल सिस्टर्स या कोई फेस्टिवल या कुछ भी हो, शी हैज सॉन्ग फॉर एवरी ओकेजन। जैसे कहते हैं ना, समधी समधन आए हुए हैं तो उनके लिए गीत है, शी यूज्ड टू स्टार्ट सिंगिंग। मतलब ना बैठे बैठे गा रहे हैं, इन हर लाइक व्हेन शी वाज इन लेट 80s, तभी बैठे बैठे गा रहे हैं। कोई पूजा पाठ के गीत हो तो अलग, या कोई वार त्योहार के हो तो अलग। मतलब राजस्थान की खूबी यही है कि हर ओकेजन के, आई एम श्योर इट्स विद एवरी स्टेट, दे हैव सॉन्ग्स फॉर एवरी ओकेजन, एवरी फेस्टिवल। मतलब कहते हैं ना कि जच्चा बच्चा मरने, सब सब जगह की, मतलब ना कोई रिचुअल्स होते हैं, तो उस तरह के उनके गीत भी होते हैं। तो उनको इतना पसंद होता था गीत गाना। तो सुबह उनका, जैसे आपने बोला कि दिनचर्या, तो वो दिनचर्या ही उनका वैसे शुरू होता था कि कृष्ण भजन से शुरू करते थे या माता जी के भजन से शुरू करते थे। और अभी उनको कुछ बोल दो आपके ये चीज के बुझी इसके ऊपर कुछ सुनाओ, तो शी यूज्ड टू स्टार्ट सिंगिंग ऑन समथिंग ऑन दैट। एंड शी वाज अमेजिंग। मतलब और ऐसा हर जगह है राजस्थान में। मतलब अभी भी अगर आप बूढ़े बुजुर्ग से मिलेंगे, यू विल गेट लॉट ऑफ फोक टेल्स, लॉट ऑफ सॉन्ग्स एंड लॉट ऑफ रेसिपीज दे कीप ऑन शेयरिंग एंड दे लव शेयरिंग। आई मीन ऐसा नहीं है कि ये कोई अननोन पर्सन है उनके साथ में क्यों शेयर करें। आई थिंक They're राजस्थान loving. इज ऑल अबाउट Very शेयरिंग। loving. They're very giving. And I think मेरे को लगता है कि इनमें वो कूट कूट के भरा हुआ है कि actually like मेहमान is like भगवान। एब्सोल्युटली, है ना? एब्सोल्युटली। I आप think मतलब यही traditions हैं जो आप बोल रहे हैं कि भाई traditions जी, और roots इतने important हैं। So these are the राइट, traditions, isn't it? एब्सोल्युटली। आई मीन कोई मेहमान अगर आ जाए घर में, तो उनके लिए ये था कि मेहमान भगवान स्वरूप है। मतलब वो आया है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको कितना आप कंफर्टेबल रख सकते हो। सो इवन जैसे आज जो हवेलियां हैं जो होटल्स में कन्वर्ट हुई हैं, और जिनके ओनर्स who are running those हवेलीज by themselves, they are following that thing कि आप आके रहिए हमारे हवेलियों में and we'll give you exactly what पधारो हमारे देश is. I mean I you'll was about learn to it. say, दिमाग में मेरे घूम रहा था, आओ पधारो हमारे देश। Yes, Yeah, and they do it so beautifully. It is so effortless. मुझे छोटे छोटे बच्चे भी क्या गाते हैं, क्या आवाज है, और मतलब कूट कूट के उनमें राजस्थान भरा है। बिकॉज यू नो जो चीज हम देखते हैं बचपन से, वो आई थिंक वो सीखने की जरूरत भी नहीं होती है, वो अपने आप आपके अंदर आ जाते हैं। जब अपन कोई चीज रूटीन में देख रहे होते हैं कि कोई अगर सिंगर है तो अपना आप साथ साथ में रियाज करते जाते हैं, या कोई फैमिली में ऐसे हैं तो उनको कुछ ना कुछ उनकी कहते हैं ना गुड थिंग्स दे यू लर्न ऑन योर सेल्फ। आपको ना अलग से कोई क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, या कोई अलग से कोई सिखाने आए उसकी जरूरत नहीं है। वो कल्चर अपने आप आपके अंदर आ जाता है, यू स्टार्ट फॉलोइंग। जैसे हमें बचपन से नहीं सिखाया गया है कि हाउ यू हैव टू ड्रेस अप या हाउ यू हैव टू टॉक या कैसे बिहेव करना है। वी हैव सीन आवर एल्डर्स सिस्टर्स सिबलिंग्स सबको, और वही देखते देखते हम लोग सीखे हैं। एंड दैट्स व्हाट वी आर पासिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। एंड That's all. आई थिंक And रूट्स, या यू शेयर लाइक दैट। yeah, I think that's a great thing. आपके यहाँ पे तो बहुत खूबसूरती से, you know, I think it's like a transformation when somebody going from Rajasthan goes or blends into a different culture. They carry so much culture of their own. वो दूर से ही पता चल जाता है, उनका पहनावा, उनका उनका बात करने का सलीका बहुत नम्र जी, होते हैं, more or less, if I'm not जी, mistaken. एब्सोल्युटली। एंड ऑफ कोर्स आजकल तो वही बारिशों का सीजन है, बहुत सारी जगहें तो डूब रही हैं। पर हाँ, आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था, सुबह से जैसे ही मैं उठी मैंने कहा भाई आज तो घेवर खाने का जी हो रहा है।
सावन शुरू हो गया है। आपके आपके ट्रेडिशन में भाई इस मौसम में तो घेवर ही खाते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली, अब सावन जैसे शुरू हो चुका है एंड सावन में घेवर बनता ही है। और ना कहीं बनता, जैसे अब मैं गुड़गांव में रह रही हूँ तो माय मदर विल मेक श्योर कि जो हम लोग के यहाँ पे तीज बनती है त्योहार, कैसे ना करके वो चीज भिजवाएं। हमारे यहाँ पे संजारा बोलते हैं कि डॉटर को आप मिठाई और पूरा मतलब ड्रेस एंड साड़ी पोशाक वट एवर यू वांट टू सेंड with घेवर एंड स्टफ यू सेंड अक्रॉस। तो माय मदर ऑलवेज मेक श्योर कि अगर कोई जा रहा है तो शिल चेक कि मिठाई ऐसी चीज आप कुरियर में नहीं भेज सकते हो, तो वी ऑलवेज गेट कि दीदी आप कैसे। बता देना अपनी मम्मी को, नाउ यू हैव अनदर डॉटर। Oh, absolutely. And she would love to. She would love to. She always, whenever she sends something, she's like, अपने दोस्तों को खिलाना। मम्मा, इनिशियली आई यूज्ड टू फील, मैं मम्मा अच्छा नहीं लगता है ऐसे किसी को आप बोलोगे आके कि नहीं सब अच्छा लगता है तो शेयर कर। So she ये हमारे बड़ों में बड़ी खूबसूरत आदत थी, बहुत absolutely वो ये है, उनको लगता है कि उनको उस मामले में नहीं होता कि कोई हिचक नहीं होती, वो कहते हैं सबके साथ शेयर करो। और right. मुझे लगता है आई थिंक बाय द टाइम वी आर आल्सो ग्रोइंग, शायद हमारे सबकॉन्शियसली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अस आल्सो। जैसे हमने अपने पेरेंट्स को देखा होता है करते हुए, कैसे हम भी वैसे ही हो जाते हैं कुछ, उनसे सीख That's सीख के, उनको देख देख के, एज यू सेड सम टाइम बैक, हम उनको देखते हैं, उनसे ये अच्छी चीजें सीख लेते हैं। आई रिमेम्बर जिस अब माई चाइल्ड वेन एवर ही गोज आउट या कुछ, मैं कहूँगी अरे ये थोड़ा सा पैक करके ले जा, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। ही फाइंड्स इट सो वियर्ड, ही सेज मम्मा व्हाट आर यू, व्हिच एरा आर यू लिविंग इन, ये सब जरूरत नहीं है, यू गेट एवरीथिंग। आई एम लाइक But नहीं you ये know, नहीं that's beautiful. मिलेगा। That's a beautiful thing. You know, जब normal time जब चल रहा था और जब schools were open and kids were going to school, my daughter always used to pack 2 tiffins, one for herself and one for friends, because उसके friends school का food लेते थे, but the day she started taking घर का खाना, they used to eat half a tiffin. तो वो हमेशा बोलती, मम्मा आप एक टिफिन अलग से दिया करो ताकि मेरे फ्रेंड्स भी खा सके। So I always used to pack 2 tiffin for her, because they love Rajasthani food, and हमारे यहाँ पे we are less on junk food and more on स्क्रैच से जो खाना बनता है एकदम प्रॉपर। सो दे लव इट, एंड आई थिंक उनका वो हैबिट ही वैसा हो गया है कि वैसा बनना है। तो आई थिंक Let me, I know it's difficult to pick a choice जिसको कहते हैं, one of your favorite songs from Rajasthan? there are many. There's one, my grandmother used to dance on. It's called Sagar Pani Lene Jaun Sa Nazar Lag Jaye. And it's a very very slow song, जहाँ पे लड़की पानी लेने जाती है, I get that. and it's a beautiful song, and I love lot of Bhagwati ki bhajan. They are very very soul touching. So whenever I feel low, I just play that, and I always make sure in my events I always perform in Bhagwati bhajan, because that touch the chord with them. पर राजस्थान में एज आई सेड, जैसे गणगौर के जैसे फेस्टिवल्स जैसे आते हैं अलग अलग, तो हमारे तीज पे अलग जैसे गीत होते हैं। गणगौर एक हम लोग का बड़ा फेस्टिवल होता है, होली के बाद में आता है, उसके अलग भजन होते हैं। तो गीत जैसे जब बात होती है तो whenever we used to see our elders, mama, bada mama, and ताई जी, चाची, and whatever you call them, so वो लोग वो गीत गाते थे। we all used to sit and learn little words. we are not a good singer, but उनके साथ में बैठ के ना पीछे पीछे, क्योंकि उनकी टोन एक अलग तरह की होती थी गाने की। you don't sing in a normal manner, वो थोड़ी सी हाई पिच पे और अलग अलग तरीके से वो गाने का तरीका होता था। सो हम लोग बीच बीच में गाते थे, फिर निकल जाते थे कि गला खराब हो जाएगा या बैठ जाएगा। बट एंड आई एम श्योर आपके उधर भी ऐसे होते होंगे। do you sing from folk songs from your side? I do actually. I do, and I enjoy folk. I remember when I was a little girl, I used to do a lot of Punjabi folk. काफी Oh, करती थी उस टाइम में। हाँ, अब थोड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई, बट मुझे शौक बहुत है। आज भी मुझे मौका मिल जाए तो मैं छोड़ू ना। मगर हमारे यहाँ तो ऐसा है ना, शादियों में तो भाई अक्सर वो खींचा खिंचाई वाले ही सॉन्ग्स होते हैं, सास और बहू वाले।
And हाँ then हाँ other than that, yes, you're right. उसमें pitch थोड़ी अलग होती है. हाँ I think any folk has a different pitch. High pitch होता है. And I used to enjoy एक आई it. थिंक एक नॉर्मल जो फोक सिंगर्स गाते हैं वो अलग होता है, और एक जो घर में जो लेडीज गाती हैं फोक सिंगर्स, मतलब फोक सॉन्ग्स, उनका एक अलग पिच होता है. एंड बिल्कुल. आई ऑलवेज फाइंड दैट वेरी फैसिनेटिंग कि ये इन्होंने कैसे तो सीखा होगा, और उस पिच पिच पे गाते हैं, वो कैसे गाते होंगे. आई मीन वो सीखना भी, क्योंकि वो वर्ड्स इतने टिपिकल होते हैं, और उस रिदम में चलना और याद रखना कि अच्छा अब ये भूल गए हैं, ये भूल गए, अब इसके बाद में ये आएगा. जैसे शादियों के गाने होते हैं तो आपको सबको याद रखना होता है, हेड टू टो सारे रिलेटिव्स उनके ऊपर, उनके नाम आएंगे एंड ऑल. सो इट्स वेरी फैसिनेटिंग. It is very fascinating. But एक बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, जैसे मुझे पता चला था that few years ago you revived wearing saris in Gurgaon, in a metro like Gurgaon. You revived this thing. I mean, what a fascinating idea it was, yeah. And implementing it as well. It is a wow. Tell me. Uh, no, there was this group which I was part of. It's called Gurgaon Sari Challenge. It's still running, but no, it's not active anymore. I mean, in between we keep sharing our pictures and all. So there was a trend which was going on 100 sari pack. I'd say I think 5-6 years back. So there's this lady who started this group, and we all were part of it. So in between, we all were talking about let's meet, let's do a Leheria get together. The admin of the group, she sent me a message that why don't you plan a get together. And I was like, okay, 5, 6, 10 people होंगे, कोई दिक्कत नहीं है. And then we started the discussion. There were like 4-5 more volunteers who wanted to join, and we all started the discussion, and like let's not uh, keep it to 4-5 people, let's do a bigger event. अच्छा, इवेंट का कोई आइडिया नहीं है कि होता कैसे है लाइफ में, कैसे करते हैं, हाउ टू ब्रिंग स्पॉन्सर्स, या कैसे होगा, या and you learn, like in the process of doing an event you learn a lot of things, and we did the same. So event के दौरान I was like कि normal event नहीं होना चाहिए. So I started marathon, साड़ी marathon. So 50-day साड़ी marathon. So event से 50 दिन पहले every day I used to put a challenge to these ladies, and वो उनको एक सेट टाइम दिया जाता था कि यू हैव टू फॉलो दिस एंड यू हैव टू ड्रेस अप अकॉर्डिंगली. एंड हैट्स ऑफ टू दीज लेडीज, आई मस्ट से शिफाली, जिस तरह से वो एग्जैक्ट सेम साड़ीज भी ले आती थी, सेम तरह का, मतलब पूरा मेकअप, एंड दे यूज्ड टू डू इट, एंड दे यूज्ड टू पुट अ नाइस स्टोरी विद इट. And it was very challenging, and the entire group was so active. I've never seen a group as active as ever, because I'm part of many groups. But उस टाइम वो सारी लेडीज इतनी एंथो से वेट करते थे कि नेक्स्ट डे का चैलेंज क्या है. एंड आफ्टर फ्यू डेज इट वाज सो चैलेंजिंग फॉर मी कि अब इनको ऐसा क्या चैलेंज दिया जाए कि वो नहीं कर पाए, या उनको ऐसे लगे कि ये नहीं हो पा रहा है. They're borrowing sarees, they're borrowing blouses, I mean they're doing what not, and I was amazed. And what a beautiful idea. Serenand, this is also revolving around tradition, isn't it? Yeah, because you were reviving tradition basically. I think it's such a beautiful way of doing it. Yeah, वो कहते हैं खेल में सीखना, ये भी ये absolutely, because before that, whenever I used to go for any events or something, there were hardly ladies who used to wear sarees in the gathering I was going. I'm not saying that Gurgaon में लोग sarees पहनते ही नहीं है, बहुत सारी ladies साड़ी पहनते हैं, and they look beautiful. But events में sarees पहनना, या I mean, for me, I always choose साड़ी as my attire. कहीं पे भी जाना होता है, it's easy to wear, and कोई टेंशन नहीं है कि क्या पहना हुआ है. So I always find it very comfortable. And with Gurgaon Sari Challenge, people started wearing sarees, they started sharing their stories, and it was a lovely time. And we did an event, and it was a huge hit in Gurgaon, and I was very, very happy. I mean, all the people who were part of organizing team, they were very thrilled, and we enjoyed a lot. बहुत मजा आया.
what for me roots and traditions would mean is like बहुत कुछ समेटने को है अगर हम चाहें तो we can learn from our elders from the generations who have seen it all. हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, सब कुछ उनकी देन है. एंड अगर जी. हम अपनी चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कोई हमारी चीज़ों को रिस्पेक्ट क्यों देगा? इट इज़ अ सिंपल सी बात. हम अपनी चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कोई हमारी चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं देगा. और जहाँ तक मैं समझती हूँ, वो कहते हैं गिव योर चिल्ड्रन रूट्स एंड विंग्स, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दिस फिलॉसफी. रूट्स आर फॉर देम, टेल देम कि हे गाइस, गो wherever, fly high, but at the same time you have this home, your own home, which is not only there to love you, but you know, come respect your traditions, your value system. There's so much to learn, so much to imbibe. तुम आज सीखोगे, आगे तुम उसको बढ़ाओगे, नहीं तो फिर हम सब तो गायब ही हो जाएंगे. You know, अगर हम अभी नहीं सिखाएंगे अपनी इस जनरेशन को, अपने बच्चों को, 30 years down the line, nobody will be there to give them what their roots are. It will be vanished. So it's very important to teach what you have learned and what you're learning. It's very important to give that to your kids, be it son, daughter. They need to know कि है क्या, रिचुअल्स क्या हैं, क्या वार त्योहार में कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह से पूजाएं होती है, या किस तरह से तैयार होना होता है, या जैसे राजस्थान की बोली एक अलग तरह की है, तो उसमें आपको कैसे बोलना होता है, या किस तरह से आप बर्ताव करेंगे आप जिनसे बात कर रहे हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है. और अपने लोगों को जानना या उनसे किस तरह से व्यवहार देना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप रूट्स नहीं पहचान पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, आप कहीं पीछे हैं अपने. फिर आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैसे आप बताएंगे कि दिस इज द प्लेस आई कम फ्रॉम, यू नो. So it's very important, and I'm so happy. I'll just share a moment. A few days back, my daughter was like, there was a wedding in our family which was going on. We couldn't go, and she used to see all these traditional dance, and she's like, Mama, when are we starting? When are you teaching me Ghumar? And she want to learn, and thankfully we started doing it. So we do one-on-one classes. It's very important. She need to learn, because otherwise, you know, क्योंकि हम बाहर रह रहे हैं राजस्थान से, तो I don't want my kids to be aloof in that gathering, you know, कि ये कोई अलग ही है, इनको पता ही नहीं हो क्या रहा है. होता है. और मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं. किसी से अगर आप क्लोज होना चाहते हो ना, वो होता है या तो बोली, सेम लैंग्वेज, खाना पीना, पहनावा, एक अपनापन. इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जिससे आप क्लोजनेस ला सकते हो. एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी राइटली सेड तृप्ति दैट अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा. वी आर द वंस हु हैव टू गिव द बेटन टू आवर चिल्ड्रन. आगे भागो, ये लो, ये अब तुम्हारे हवाले. बट अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? I mean, this is such a interesting thing that we just discussed today, roots and traditions, and I'm glad you could take out time to have this conversation with me. I'm so happy to be part of it, Shefali, and thank you so much for giving me this opportunity to share my little bit about my root and culture. And it's important, as you also rightly said, कि आगे भागो अपने. I mean, we have to give them that light that now you have to shine and you have to share your light with the rest of the world. Absolutely. Thank you so much, Tripti. I love this. Thank you so much. Thank you.